So I welcome you all to this wonderful webinar by Dr. Sunita Ladha. Dr. Sunita Ladha is a gynecologist by profession, and she is very, very passionate about emotional intelligence. And emotional intelligence क्यों ज़रूरी है? कोचेस के लिए भी ज़रूरी है, बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है, लेडीज के लिए खास तौर से ज़रूरी है, बिकॉज दे हैव टू हैंडल द वर्किंग वुमेन पर्टिकुलरली, उनको अपना वर्क स्पेस भी देखना होता है और अपना फैमिली को भी देखना होता है। तो उनके लिए दोनों दोनों जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस है। फैमिली को कैसे हैंडल करना है, वर्क स्पेस पे कैसे हैंडल करना है, और सिमिलरली कोचेस के लिए या बिजनेस पीपल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जब तक इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, जब तक इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। और ट्रस्ट जब तक डेवलप नहीं होता, तब तक कोई ट्रांजैक्शन, कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने जो कोर्स खरीदा वो आपका ट्रस्ट बना, तब आप लोगों ने कोर्स खरीदा। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रस्ट के बेस पे होती है, और ट्रस्ट बनाने के लिए इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज डॉक्टर सुनीता लड्ढा इज द एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर सुनीता चड्ढा टू टेक ओवर। डॉक्टर सुनीता। Thank you. Yes, sir. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to address such an important topic of emotional intelligence to you all. A very good evening, ladies and gentlemen. How are you all? And when I ask you, how are you all? I request you to take a moment and really think about how you are. If you are able to see this slide, you try to relate that at this present moment, among these emojis, which fits your emotion or your mood. So just take a moment and write it down, please. So, good evening once again. I am Dr. Sunita Ladha. Thanks a lot to to B.M. Agrawal sir for giving my kind introduction and giving me the chance to address you all. Why are we talking about emotional intelligence, and especially emotional intelligence in the field of coaching and training? Because as you all are aware that you all are trying to be a coach or aspiring coaches or already are coaches. So we are here today because we will see that besides all other intelligences, which I'll tell you is not only one intelligence, there are 7 types of intelligence, and emotional intelligence is a very important aspect for all areas of our life. So coming to what are emotions? If we go by the Oxford Dictionary, the definition of emotion is that it is a strong feeling which comes from one's circumstances, mood or relationship with others. मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका जो सर्कमस्टेंस है, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास जो लोग हैं, उनसे आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है, वो आपके इमोशंस हैं. सो इमोशंस आर इंटेंस फीलिंग्स जो किसी पर्टिकुलर समय पे हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, और जो यूजुअली हमारी बातचीत होती है. आप you must have observed that these conversations tend to focus on what we are doing or what we are thinking. Most of the time we say I think, मुझे लगता है. We never say I feel. तो इमोशंस के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, जबकि they are the internal conscious states and it is our interpretation of them. And we need to be aware. Why we need to be aware of our emotions? Because they affect our choices and decisions. You all know that this is a ongoing fight कि हमें दिमाग की सुनना चाहिए या दिल की सुनना चाहिए. And everybody feels that being emotionally intelligence means we are always listening to the heart. हम अपने दिल की सुनो और दिल के हिसाब से करो. But आपको पता है क्या? Your emotions also have a mind of their own.
It is not the opposite of intelligence. Beware, emotional intelligence is not the opposite of intelligence, but it is the unique union of both, where you decide considering every aspect. So, coming to what is emotional intelligence? Of course, it is an ability, and a very important ability. Why? Because it is the ability to sense, to understand, and to apply effectively the power and acumen of emotions in such a way that it facilitates a high level of productivity. You all will agree that we are here to enhance our productivity, to enhance our performance, be it in training and coaching or be it any area of life. Performance counts. And especially why a trainer needs high intelligence, high emotional intelligence. Because you know that in your courses, you don't know what sort of people you will get. You will get all kinds of people from all walks of life. So you should have that special ability to get along with all kind of people. हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैं सिर्फ जो बहुत हार्ड वर्कर है ना वही मेरे कोर्स में आएंगे, या जो बहुत पंक्चुअल है अपना असाइनमेंट टाइम से करेंगे वही मेरे कोर्स में आएंगे. हमारा चैलेंज ये है कि हर तरह का बंदा हमारे कोर्स में आए और उसे हम उस तरह के बना सके, उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे दे सके. Then a high EI makes you understand what motivates people. As a coach or a trainer, we have to motivate people for what, to let them and to get them achieve what they have come to us for. So this will help us. And most important for a coach is the best of communication. Not only better, we have to be the best communicators. And our high emotional intelligence will instill more confidence and a positive attitude in our trainees and coaches. It will increase our creativity. And the most important, which is not mentioned, is there, which Sir had already said, that it will train us to receive feedback and criticism in a positive way. So now that brief introduction, you all will be thinking that why I am here. So I say that after this webinar, you will be able to learn the 5 skills of emotional intelligence. You will know your emotional intelligence score, and you will learn techniques to improve your emotional intelligence. That is the best part of emotional intelligence. You see, IQ is a person is born with a particular level of IQ, but EQ, that is emotional quotient, can be increased. Of course, with people like me, if you come, we will do it together. It has been said by Daniel Goleman, who had brought emotional intelligence into limelight by his book, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. And he says that emotional intelligence is 2 times more important than knowledge and technical skill for any outstanding performance. So जो हमें लगता है कि हमारे बच्चों ने एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में करना चाहिए, वो सब करने के बावजूद भी उन्हें इमोशनली इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग लेना जरूरी है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. Once again, I see in any area of life. And of course, it is also needed for a peaceful and life personally and professionally, especially to manage the work-life balance. So the 5 skills, coming to the 5 skills of emotional intelligence. Daniel Goleman has said these 5 skills are of emotional intelligence: self-awareness, self-regulation, and self-motivation, followed by empathy and social skills. So the first 3 are in the domain of self-recognition and self-management.
मतलब कि शुरू के 3 जो स्किल हैं वो हमें अपने आप में डील करने के लिए हमारे खुद के अंदर डेवलप करने हैं. And the last 2 are about recognition of others and relationship with others. So let us see one by one each skill. So self-awareness. It has been said that man is not what he thinks, he is what he hides. So what do we mean by self-awareness? Self-awareness means, as the name says, that we have to be conscious. Conscious of what? Conscious of our strengths, our weaknesses. We have to be honest that I am feeling this, I have this emotion, or I lack this emotion. And we need to recognize triggers. कि what triggers me? मतलब अच्छा पॉजिटिव काम करने के लिए मुझे क्या मोटिवेट और ट्रिगर करता है, या मेरा फ्यूज जब उड़ जाता है तो मुझे क्या ट्रिगर करता है. It also shows us the awareness. हमें ये रियलाइज होना चाहिए हमारे खुद के बारे में कि how I work best, how I handle stress, how as a trainer and coach when we are working, how I expect others to perform. It is also the knowledge that how you feel, and when you are aware of your emotions, you are in control of them instead of the emotion taking control of you. If you know what you are heading for and what moves you or motivates you, then you can pursue those opportunities which suit your skill set, your preference, and your temperaments. Now coming to the next skill, that is self-regulation. And it is one of the most important skill which is needed in the field if you want to become a highly emotional intelligent person. Now, what do I mean by self-regulation? People think that self-regulation means you have to suppress your emotion. But it is not about suppressing your emotion. Rather, it is expressing your emotion in healthy ways. We need to manage our emotions. Why? Because as we have seen that they control our action and our behavior. So, self-regulation means you are able to control impulsive feelings and behaviors. And you are able to manage your emotions in healthy ways. देखो, जब तक हम इंसान हैं, इमोशन तो रहेंगे. We cannot be emotion free. It is just about you have to manage those emotions in a healthy and way so that your action which follows that emotion is a productive action and not a destructive action. You become more, whenever you are highly emotional intelligent, you are more adaptable and more resilient. What does that mean? Means you can return to being calm equally well after excitement or after any sorrow or grief. I'm sure, friends, you will agree that life is 10% of what happens to me and 90% of how I react. And please be aware that what is in your hand is always only how you react. That is your choice. How you react is your choice. You can choose the way to react. For example, I'm taking this webinar and I'm sitting in my consulting chamber, and suddenly somebody comes, opens the door and comes inside, trying my staff and trying to tell me, madam, ऐसा ऐसा कोई आया है बाहर और somebody किसी का phone आया है. So there were two things. First of all, what I should have done, that I have to give them clear instructions. This comes under the domain of communication, that from this time to this time I'm busy
Please don't disturb me. I will not answer. Please don't open the door. This was the first point, which would have given me the power to stay calm. But still, इतने सारे लोग हैं, somebody might have forgotten कि मैडम ने ये बोला है. Still they come inside. Now, what can I do? वो तो आ गए अंदर, उन्होंने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया है. Now it is with me. What do I do? I can either shout, अरे आपको बताया था ना, आपको समझ नहीं आता है कि अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, or I can just calmly say, please wait, I'm busy. So you all must have always come upon to these circumstances. And why I'm saying this, because I have experienced this. I used to react like that only. But when I started dealing with emotional intelligence and learning these skills and trying to develop them, now I have come to understand that I can change my reaction and keep my cool and calm. So, hope you all are getting this, sir, everybody. Now, these we have dealt with ourselves, self-regulation and self-awareness. Now we have to come with empathy. What is empathy? It is the power or the ability to understand others' feelings, see their perspective, see their view, see the things from their side, and communicate to them that you understand. And why empathy is very important for a coach? Because it is the main thing which will fuel connection. It will keep your trainee or your coachee connected to you. It will give them that sense of belonging and connecting, that you are there for them. So for empathy, what we need to do means we have to observe. We have to engage with them and immerse in their feelings, their understanding. And what we don't have to do, we have to drop assumptions, judgments, and biases. This is a very important thing which we need to do, is to stop being judgmental. Because judgments or assumptions, they, अगर उनका हमने ये चश्मा पहन के रखा है ग्रीन कलर के ग्लासेस का कि नहीं, ये व्यक्ति समझो वो 2 बार लेट आया, and we have a judgment कि this person is never going to come on time, so he will never come. तो ये चीज हमें निकाल के देखना चाहिए एंड हमें पता करना पड़ेगा कि वो क्यों टाइम पे नहीं आ रहा है. Empathy means that you go beyond, try to find out what is his problem, why he is not able to come on time, and then you can support him to be on time or to do his assignment. Do like these things. Okay, so that is empathy. We will see how we can develop our empathy. Now the fourth, we come to motivation. Self-motivation is the skill which we need to see. And of course, as coaches, where we are needed to motivate others, we need to be very much motivated. So we have to inspire and impact others to work for long-term success. If one is motivated, we have to impact for long-term successes, and we need to be strong to accept challenges, to pursue people, to take up challenging goals, and to pursue excellence, to take calculated risks. And we should have the willingness to learn how to improve not only our performance, but also our participants' performance. We have to remove the fear of failure from our participants. And for that, first, we need to be optimistic and daring to go, and raring to go without any fear of failure. Social skills.
This is also one of the very important aspect of emotional intelligence, because we should be very adept with basic interaction, good communication, conflict resolution, and we have to be a team player. Because as a coach nowadays, we cannot run any enterprise alone. So we have to build a team. We have to have the ability to take and work with people and be together with them. We need to appeal to the values and beliefs of the participant. And an important tact, an important ability that a coach or trainer needs is the skillful use of persuasion, the art of influencing and persuasion. See, we are in the work of transformation. What is coaching and training? We are in the work of transformation. So we have to influence them and persuade them to, so that they develop their sense and respond to emotions and needs of them and ours also. And we should also have the special ability to acknowledge and reward people, especially our participants. How we are going to improve all these, we will be soon seeing. Now, this is, I think we can skip this. This is just, I want to say that emotions are not, heart is not the seat of our emotions, but it is in the brain. Just I want to mention in short that sometimes you all must have seen that हम बोलते हैं ना उसका फ्यूज उड़ गया, कोई अचानक से बहुत कुछ रिएक्ट कर देता है, छोटी बात होती है पर हम जोर से रिएक्ट कर देते हैं और बाद में हम खुद सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, या मुझे इतना डर क्यों लगा, या मुझे इतनी परेशानी क्यों हुई. तो ये क्योंकि हमारे ब्रेन का काम है और इसको बोलते हैं इमोशनल हाईजैक. What is an emotional hijack? Means it is a situation in which एमिगडाला मतलब हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है. और यूजुअली क्या होता है जब हमारे ब्रेन में ये रिस्पॉन्स आता है, कोई स्टिमुलस आता है कि भाई किसी ने आके हमें कुछ बोला, तो यूजुअली हमारा ब्रेन यहाँ कॉर्टेक्स में उसको प्रोसेस करता है और एक एप्रोप्रिएट हम रिस्पॉन्स देते हैं. जैसे किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम बोलते हैं थैंक यू, पर वो रिस्पॉन्स यहां से आता है और हमारा ये रिस्पॉन्स आता है. बट समटाइम्स जब कुछ ट्रिगर ऐसे आते हैं कि ये सेंसरी कॉर्टेक्स यानी जो हमारा थिंकिंग लॉजिकल ब्रेन है वहां तक वो स्टिमुलस पहुंचता ही नहीं है एंड इट डायरेक्टली द एमिगडाला उसको हाईजैक कर लेता है और सीधा यहाँ आ जाता है. और जब ये यहाँ स्टिमुलस डायरेक्ट आता है तो कोई थिंकिंग नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं चलता और इरैशनल रिस्पॉन्स आ जाता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूज उड़ जाना या भड़क जाना या जो बहुत जोर से एक्सप्लोड हो जाना. आई होप आई एम क्लियर सर. ओके, So you can just more Hindi because there are lots of Hindi speaking people. ओके श्योर. तो इस तरह से हमने देखा कि हमें लगता है कि ये हमने ऐसा सोचा भी नहीं और हमारे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया. हम बाद में हमेशा सोचते हैं यार मैं इतनी जोर से क्यों चिल्ला दिया उसके ऊपर. तो ये इस वजह से होता है. सो इमोशनल हाईजैकिंग मतलब है एक सीवियर सडन रिस्पॉन्स जिसके ऊपर हमें बाद में हमेशा ज्यादातर पश्चाताप होता है या रिग्रेट होता है. तो अभी तक हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और उसके 5 मेन स्किल्स क्या हैं. अब हम आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं. क्योंकि आखिर में हम यही तो चाहते हैं कि अगर हम अपना आईक्यू तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन हम अपना ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट बढ़ा लें. तो आइए हम सब देखते हैं. फिर से हम आ गए. सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के तरीके. फिर से मेरा वही क्वेश्चन आ गया कि हाउ आर यू.
क्योंकि हम लोग ज्यादातर कभी अपने आप को ये किसी मोमेंट पे बैठ के पूछते नहीं है या सोचते नहीं है या देखते नहीं है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। कोई हमें आके बोल देता है कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तब हमारा ध्यान जाता है कि अरे हाँ आज ये हुआ था इसलिए मैं खुश हूं। या फिर कोई आके बोलता है आप तो हमेशा बड़े गुस्से में रहते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि हाँ मुझे तो बस गुस्सा ही आता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसी ही गुस्सा करती रहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें ये क्यों जानना है, सेल्फ अवेयरनेस, कि हमारा एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इमोशन क्या है। क्योंकि यू आर नॉट योर इमोशन, आप अपने इमोशन नहीं है। आप किसी वक्त पे आप क्या सोच रहे हैं या आपको क्या महसूस हो रहा है, उससे आप एक पर्सन जैसे डिफाइन नहीं होते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी अभी, तो ये हमें ऑब्जर्व करके करना क्या है, क्या ऑब्जर्व करना है हमें कि मुझे कैसा लग रहा है। अगर मैं समझो हमें ये मालूम, हमने ये समझो ये इसमें से इस मोमेंट पे आपको लगा कि मुझे हैप्पी लग रहा है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है खुद से कि क्यों इस मोमेंट पे मैं ये हैप्पी क्यों हूं, क्यों खुश हूं। दूसरा ये देखना है कि क्या हुआ था, किस चीज से मैं हैप्पी होता हूं। और ये एक ही क्वेश्चन है, समझो वाई के साथ ये दोनों आ जाएंगे, क्यू के साथ, कि किस किस वजह से होता हूं और किन किन मौकों पे या किन किन समय पे होता हूं। और कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करने के बाद अगर सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसका एक रिकॉर्ड रखें, जिसे हम बोलते हैं जर्नलिंग। मतलब कि कुछ लोग ये करते हैं डायरी, आपने देखा होगा कुछ लोग रात को डायरी वगैरह लिखते हैं। तो अगर आपने कुछ दिनों तक ये मेंटेन किया जर्नल, तो आपके पास एक प्रोफाइल तैयार हो जाएगा और आपके मेन आप कौन कौन से इमोशन से दिन भर में गुजरते हैं, क्यों गुजरते हैं, ये आपके पास एक प्रोफाइल आ जाएगा। तो आप खुद को समझने के लिए और आपकी अब सेल्फ अवेयरनेस या खुद को जानने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। एक एक्टिविटी जो और आप करिए कि 3 एडजेक्टिव्स आपके जर्नल में लिखिए। ये आप होमवर्क के तौर पे आप कर सकते हैं कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं, खुद के लिए आप 3 एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं हेल्पिंग हूँ। तो ये 3 एडजेक्टिव मैं अपने बारे में सोचती हूँ। इसके बाद आप देखिए कि दूसरे आपके लिए क्या 3 एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी एक्टिव नहीं हूं, लेकिन दूसरे लोग मेरे बारे में हमेशा ये एडजेक्टिव यूज करते हैं कि आप बहुत एक्टिव हैं। तो ये चीज से फिर मैं मोटिवेट हो सकती हूँ, मैं अपनी एक्टिविटी मैं अपने आप को ये कर सकती हूँ कि मुझे तो लोग ऐसा देखते हैं, तो इसका मतलब मैं हूं ऐसी। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो एडजेक्टिव है, जो आप खुद के बारे में सोच रहे हैं या दूसरे आपके बारे में सोच रहे हैं, इससे आपके ऊपर असर क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे बारे में कई लोग आके बोलते हैं कि आप गुस्सा भी करते हो, आप जोर से बोल देते हो, तो इससे मैं हर्ट होती हूँ, मैं अफेक्ट होती हूँ। और जो मैंने बताया कि जब लोग बोलते हैं कि आप बहुत एक्टिव हो, तो उससे मैं खुश होती हूँ। तो हम पे क्या अफेक्ट हो रहा है, हम पे क्या असर हो रहा है, ये भी हमें एनालाइज करना है। और खासकर हमें अपनी कोचिंग वाली एरिया में देखना है कि ये एडजेक्टिव्स हमारे एज अ रोल, एज अ कोच में हमको कैसे हेल्प करते हैं। और एंड में जब हम ये सब लिख लेंगे, तो फिर हमको ये आइडिया आएगी कि इसमें से कौन सी बातें हम अपने बारे में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मेरे लिए मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी गुस्सा, अगर लोगों को लग रहा है कि मैं गुस्सा जल्दी कर रही हूँ या जोर से बोल रही हूँ, तो वो फैक्टर में चेंज करना चाहूंगी। इसके अलावा अब हमें यह देखना है
जब हम सेल्फ रेगुलेशन अपना कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए हमारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या है। हमारे इमोशनल ट्रिगर, ट्रिगर मतलब कोई भी टॉपिक या स्टिमुलस जिससे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, मतलब कि हम कुछ जो हम नहीं करना चाहते वो कर लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है ट्रिगर, कोई शब्द हो सकता है, कोई ओपिनियन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जो हमें एकदम से प्रोवोक कर देती है। और यूजुअली ट्रिगर होने के बाद हमें गुस्सा आता है या हम दुखी हो जाते हैं या डर लग सकता है। तो अब हम इन ट्रिगर्स को तो बंद नहीं कर सकते, वो जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो है वो रहने ही वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको री इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई प्रेजेंटेशन के पहले आप को पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है कि कैसा होगा प्रेजेंटेशन, क्या होगा, सब अच्छा होगा कि नहीं, पार्टिसिपेंट्स कितने आएंगे, उनको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा ना कि नहीं लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, नर्वसनेस, दिस इज नर्वसनेस। और इस तरह से हमें पता है कि नर्वस हम जितना होंगे उतना हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है और वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो अब हम इसको रीइंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारी दिल की धड़कन बढ़ गई है, हमें पसीना आ रहा है, हम ये सोच सकते हैं कि मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं, मैं आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ, मेरा बहुत पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है मेरा प्रेजेंटेशन। तो दिस इज एक्साइटमेंट, दिस इज नॉट नर्वसनेस। ये जब मैं अपने आप को हम बोलेंगे तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अनदर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक बहुत खास फ्रेंड है और कई दिनों से, मतलब आप लोग हफ्ते में 2-3 बार बात कर लेते फोन पे, लेकिन पिछले 3-4 हफ्ते से उसका कोई फोन नहीं आया है और आप मन ही मन बड़े गुस्सा हो रहे हैं कि यार अपने आप को क्या समझ रहा है, खुद ही कॉल नहीं करता, हर बार मैं ही कॉल करूं क्या, ये क्या बात हुई। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सोशल स्किल है, आप आपको ट्रिगर हो रहा है, आप हो सकता है उससे कुछ जोर से बोल दे या कुछ उसको व्यंग्य कर दे कि तू तो बहुत बिजी हो गया आजकल, और आपकी रिलेशनशिप पे उसका असर पड़ सकता है। तो इसकी जगह आप अपने आप को ये बोले, अगर री इंटरप्रिटेशन करें कि नहीं वो घमंडी नहीं हो गया है, वो सही में कुछ काम में बिजी है, या कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया जिसकी वजह से वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, अपनी बीमारी का नहीं बताना चाह रहा। तो आपका आप शांत रहेगा आपका मन, और जब भी आप उससे मिलेंगे या बात करेंगे तो उस बैकग्राउंड से आप बात करेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे जाएगी। इसमें भी हम एक एक्टिविटी, आप लोग ये लिख लीजिए और अपने आप एक्सरसाइज ये आप करिए, तो आपको आगे के लिए ये अच्छा रहेगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट सोचिए आज दिन भर में या पिछले हफ्ते में, जब आपको गुस्सा आया था, तो वो एक्शन, वो इंसिडेंट लिखिए आप कि आपको क्यों गुस्सा आया था। उसके बाद आप ये लिखिए कि उस समय आपने उसको कैसे हैंडल किया था, मतलब गुस्सा तो आ गया लेकिन फिर आप शांत कैसे हुए थे, आपका क्या बिहेवियर हुआ, आपने कैसे रिएक्ट किया। और इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। द लास्ट टाइम आई वाज एंग्री, आई आई क्या मतलब, जैसे ये हो सकता है कि आई मूव्ड अवे फ्रॉम देयर, मैं वहां से चला गया, या फिर मैं अपने आप को मैंने टीवी में डाइवर्ट कर दिया, या मैं कुछ कॉमेडी देखने लग गया, या मैं किसी और से फोन पे बात करने लग गया, या मैं मुंह फुला के या गुस्से में मैं कमरा बंद करके बैठ गया, या मैं सो गया। और उसके बाद आप ये सोचिए कि भाई आप फ्यूचर में इस तरह का इंसिडेंट आया अगर, तो आप उस समय किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे, तो आपको क्या क्या रिएक्शन आप करना चाहेंगे, आपको क्या क्या एक्शन लगेंगी, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये आप लिखिए। तो जब आप एक बार लिख लेंगे, आपके सामने रहेगा और उसे 3-4 बार आप पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वो ही बिहेवियर और वो ही एक्शन आपके आने लगेंगे,
और आपका एंगर कम होने लगेगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अपना सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए और सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें कुछ दूसरी टेक्निक्स भी अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि माइंडफुलनेस की टेक्निक्स लाइक योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। Meditation is really a very powerful tool which will make you have all the skills of emotional intelligence. It will help in your self-awareness, in your self-regulation, in your self-motivation. ये तीनों जो सेल्फ की चीजें पे आपको काम करना है, वो मेडिटेशन आपने रेगुलर किया तो दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव ऑल द थ्री. Breathing exercises is especially important to control your reactions. जब आपको लगने लगे, क्योंकि देखो हमारा जो इमोशन आता है ना, उसके कुछ फिजिकल एक्सप्रेशंस भी रहते हैं. जैसे अगर हमें डर लगने लगता है तो हमें पसीना आने लगता है, गुस्सा आने वाला रहता है तो हमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है. तो हमें अंदाज आ जाता है कि अब मेरा ये चीज होने वाला है. तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पॉज लीजिए और 3-4 लंबी सांसें लीजिए. वो 30 सेकंड्स में भी आपके रिएक्शन में बहुत डिफरेंस आ जाता है. अगर आपने कॉन्शियसली ये सब शुरू किया तो आपका सेल्फ रेगुलेशन और सोशल स्किल में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा. अब आपको ये देखना है कि मैं प्रेजेंटेशन मेरा कैसा है, या आप ये चाहते हैं कि आप मोटिवेटेड है कि नहीं. तो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड या पार्टनर, कोई भी आप हो, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिनसे आप ये पूछें कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ अभी जो मैंने बातचीत की वो मैंने कैसी की, मैं अपने इमोशन कंट्रोल कर मैनेज ठीक से करे क्या मैंने, या मैंने कुछ ठीक से नहीं जवाब दिया, या मैं कहीं लूज कर गई अपना सेल्फ कंट्रोल, ये आप पूछ सकते हैं. और स्पेशली प्रेजेंटेशंस के बाद, आज हम रिकॉर्ड करना शायद भूल गए ये, हम अपने रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं कि हम जब किसी को कोचिंग कर रहे हैं तो हमने उसके साथ में कैसा इंटरैक्शन किया. अब इम्पोर्टेंट है, जैसा हमने बोला था, टू डेवलप एम्पैथी. और इसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं अगर, और या फिर हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं, तो हम वो उसकी आवाज म्यूट कर दीजिए आप, और सिर्फ जो एक्सप्रेशन है उनके, उससे आप कोशिश करिए पता करने की कि उस व्यक्ति के मन में क्या, मतलब वो क्या मूड में है, और वो गुस्से में है, कि वो खुश है, कि वो उदास है, कि वो डरा हुआ है. तो जो नॉन वर्बल उसके एक्शन से हम पता करने की कोशिश करें कि उसका मूड कैसा है. तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है, ताकि आप जब रियल लाइफ में लोगों से बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे से कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी थॉट्स क्या है. और ये तो हमने पहले देखा ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि assumptions छोड़ दीजिए. किसी के बारे में कुछ सोचा हुआ पहले से, वो चश्मा उतार के ही उनको देखिए. और एम्पैथी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिसनिंग. हमने देखा है कि हमें गुड कम्युनिकेटर होना जरूरी है. तो गुड कम्युनिकेटर की साइन ये है, कम्युनिकेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, आई एम श्योर आप सब जानते हैं, बोलना और सुनना. और गुड लिसनिंग इज द इम्पोर्टेंट स्किल. इफ यू डेवलप, देन यू विल डेवलप अ वेरी ग्रेट एम्पैथी. तो हमें कैसे सुनना है, हमें सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, इसका मुझे जवाब देना है. हमें एक बिगिनर के जैसे सुनना है, मतलब कि इस जगह से नहीं सुनना है कि अरे हाँ ये क्या बोलने वाला, मुझे सब मालूम है, इस चीजों के बारे में तो मुझे सब पता है. यहां से नहीं सुनना है, हमें ऐसे सुनना है कि नहीं, अभी हम इसको पहली बार सुन रहे हैं, हमको नहीं कुछ पता है. और हमें वो जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, उसमें वो जो बोल रहा है उसमें कितनी बातें फैक्ट है और एक्चुअली उसकी क्या फीलिंग्स है, ये देखने की और ये सुनना है. और लिसन फॉर द राइट रीजंस, मतलब वही कि हमें
उसको मदद करने के लिए, उसके साथ एम्पैथी बढ़ाने के लिए सुनना है, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। और एप्रोप्रिएट जगह पे हमें उससे क्वेश्चंस पूछना है। ऐसा बोला जाता है कि सुनते हम सिर्फ अपने कान से नहीं है, एक्चुअली सुनते हैं पूरी बॉडी से। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ आ जाता है कि वो आपको अच्छे से सुन रहा है कि नहीं। खासकर मोबाइल के दिनों में हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपना फोन बीच बीच में न देख रहे हो जब हम किसी से बात कर रहे हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी है हमारे साथ हो रहा है, जहां भी हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। दिस इज द साइन, द नंबर 1 साइन ऑफ द मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। जब हम खुद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ही हम अपने जीवन के शिल्पकार खुद होंगे, और तब हम लोगों की लाइफ में भी जब बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे, क्योंकि हम किसी को भी किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहे। सो कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी विल टेक यू इन ऑल एरियाज। आप देखिए, आप सेल्फ अवेयर रहेंगे, आपको पता रहेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपका सोशल स्किल बढ़ेगा, क्योंकि आप रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप माफी मांगने के लिए तैयार रहेंगे। माफी मांगना हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का बहुत बड़ा गुण है। आप चीजों को ठीक करने के लिए तैयार रहेंगे, आप दूसरों को ब्लेम नहीं देंगे। फिर उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी, जब आपको पता है कि आपके जीवन के शिल्पकार आप खुद हैं, तो आप अपना हर चीज के लिए आप खुद एक्टिवली डिसीजन लेंगे और काम करेंगे। और किसी से करवाना है काम तो उसके लिए भी आप उससे उस तरीके से आप बात करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू ऑल आर लीडर्स, एंड सो द लीडर हैज टू टेक वर्क फ्रॉम अदर पर्सन्स, बट उसके लिए आपको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। तो आपके डाउन द लाइन वाले लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी 100% लेना सीख सकेंगे। अब एज अ कोच अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी एक एक्सरसाइज करिए कि आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स क्या क्या है रिलेटेड टू योर कोचिंग, कि आप प्रेजेंटेशन देने में आपको क्या क्या आपके मिस्टेक्स होते हैं, रिपोर्ट लिखने में आपके क्या मिस्टेक्स होते हैं, किसी ने फीडबैक दिया तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मार्केटिंग में आप कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये आप एक एक्टिविटी अपना पूरा लिखिए, और एक बार आपने जब नेगेटिव आपके लिख लिए तब आप उस पर देख सकेंगे कि नाउ व्हाट एक्शंस आई नीड टू डू टू इम्प्रूव माय परफॉर्मेंस। आपको समझ आएगा कि ये इसी का ऑपोजिट मुझे करना है। जैसे कि मार्केटिंग में आपको अगर लग रहा है कि नहीं भी मैं क्यों जाऊं, लोग अपने आप मेरे पास आना चाहिए, मेरा तो नाम है, अपने आप लोगों को आना चाहिए, तो फिर आप ये लिखिए कि यू आर बीइंग इगोइस्टिक, और यू आर बीइंग लिथार्जिक, और यू आर बीइंग रिजाइंड, कि नहीं अपने आप हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो आपको अपने आप उसका ऑपोजिट एक्शन दिखेगा फिर कि नहीं ये तो करने से कुछ हो नहीं रहा है, मुझे ये करना है। और अगर आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंट EQ आप पता करना चाहते हैं तो आप ये एक क्विज है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो आंसर्स को आप अटेम्प्ट, आप वो अपना स्कोरिंग आप खुद फिर कर सकेंगे। आप ये भी इसका भी फोटो ले लीजिए तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे कितना कितने मार्क्स देना है। कैन आई चेंज? ले लिया क्या? There are 15 questions which you need to answer. So finally, please remember that your trainees and your coaches, they want you to be present more than they need you to be perfect. And to be present, you
For them, you need all these skills of emotional intelligence. Thank you. Thank you, Dr. Sunita. Who is doing this annotation? Please don't do this. Please don't do this annotation. This is wrong. Thank you very much. This was very, very valuable. और मैं चाहता हूं कि जो participants हैं वो अपना feedback लिखें यहाँ chat box में कि उनको क्या experience रहा, और कोई questions हैं तो डॉक्टर सुनीता is open for questions. आप अपने questions पूछ सकते हैं. If there are any questions, please put forward your questions. Dr. Sunita, there's a question for you. What to do when fuse off? हाँ, उसी के लिए तो सर वो है ना, जस्ट अ सेकेंड, माइंडफुलनेस की जो टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग, टेकिंग अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, टू पॉज एंड टू डू रेगुलर मेडिटेशन, ultimately in the long run those only will help you to control your fuse to going off. Any more questions? Somebody is asking that can we get this questionnaire. I had told them कि आप उसका पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते तो you do one thing, send me a PDF of this questionnaire. Okay, sir. This Yes. quiz. I'll get it posted on the website or in the Facebook group. Okay, so Okay, that people sir. can go through it and they can respond. So I hope it was of use to people. She is asking प्रश्नावली किसने बनाया है? ये सर इमोशनल इंटेलिजेंस के जो कोर्सेस रहते हैं उसमें से ही मैंने लिया है, मैंने नहीं बनाया है. Thank you once again, sir, for giving me this opportunity. That's good. That's I was really we are honored that you are here और आपका जो presentation है सबको अच्छा लग रहा है और informative था. This was very, very informative. और in future we'll also be having more sessions with you. We hope so. On some yes, more sir. I also hope so, sir. Definitely. If there are no more questions, should we conclude? किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. अभी सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. लेट्स टेक ए स्नैपशॉट. Yes, सब sir. लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. सब लोग ऑन कर लीजिए. बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. सब लोग अपना कैमरा प्लीज ऑन करिए. That's good. That's good. Thank you, everyone. That's good. I thank you all for spending your evening with me today. Thank you all. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और आई होप कि इस तरह के सेशंस हमारे चलते रहेंगे. नेक्स्ट वीक में एक सेशन मैं सोच रहा हूँ करने का, दैट इज ऑन माइंड पावर. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, दैट अगेन इज गोइंग टू बी ए फ्री सेशन. हाउ टू यूज योर माइंड फॉर मेकिंग योर लाइफ बेटर. ओके, आपके प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में आप कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं यूजिंग योर माइंड पावर. सो दैट विल बी announced in the Facebook group and you will all get email notifications for this. So whenever you feel like, whosoever feel likes, वो attend कर सकते हैं. That's going to be a free session. और इस ग्रुप में इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहेंगी. और आप में से अगर कोई अपना इस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहता हो और वो सब्जेक्ट अगर रेलेवेंट हुआ तो डेफिनेटली यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर प्रेजेंटेशन एंड शो इट टू द पीपल, सो दैट लोग अपने ग्रुप के मेंबर्स का भी बेनिफिट हो और आपका भी उसके अंदर बेनिफिट ये रहेगा कि आप
का कनेक्शन बहुत सारे लोगों से बनेगा, बहुत नए लोगों से आप जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम ये कंक्लूड करते हैं। आई होप सबको अच्छा लगा, और फीडबैक अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फेसबुक ग्रुप में फीडबैक दीजिए, कि पिक्चर्स पोस्ट हो जाएंगी फेसबुक ग्रुप में, एंड आई होप कि आप लोग अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू डॉक्टर सुनीता, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल। Good night, sir. And thank you. थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you.